Bismillahirrahmanirrahim. Class 9 Physics, uh, lecture number 5 from the first chapter, Introduction of Physics. And the lecture number 1 we studied Introduction of Physics, the definition of physics. Second lecture, branches of physics. Third lecture, base and derived physical quantity. And in the previous last one lecture, lecture 4, we studied about the scientific notation, prefixes and the uses. So dear student, today we will discuss and learn about the vernier caliper, which is the one of the measuring instrument used for the measurement. How can we measure the length, the diameter inside or outside of anything? Like you want to measure the inside diameter of this hollow cape of the marker. So you can measure this diameter through with the help of vernier caliper. If you want to calculate, if you want to measure the diameter of this marker nib, so this we can't measure with the ruler, with any kind of any other measuring instrument. So for this purpose we use the measuring instrument, that is vernier caliper. If anybody want to calculate or measure the depth of that cape of the marker, so we can calculate it easily with the help of vernier caliper. We can't calculate this depth with the ruler. So there is an instrument which is used for all this kind of measurements, is known as vernier caliper. So here we come to definition, and the man, the mathematician, the physicist who invented this instrument, named Pierre Vernier. Pierre Vernier, Belgium. He born in Belgium and lives in France. He was the mathematician and physicist as well. Pierre Vernier was the man who invented this measuring instrument through which we can measure all this diameter and length and depth. So the definition of vernier caliper. What is the definition of vernier caliper? It is a measuring instrument through which we can measure up to 1/10 of millimeter or 0.1 millimeter, called vernier caliper. So here is a diagram, here is the figure. You can see in this figure, like this is an instrument which is named as vernier caliper, through which we can measure up to 0.1 millimeter. So that's mean it is a very small value which can be measured on the vernier caliper. So that's why that is the specialty, that is the special which makes it special in the measuring instruments. So the measuring least value of this instrument is 0.1 or 1/10 of the millimeter. So that is the definition of vernier caliper. So it can measure through this
measuring instrument. We can measure first inside diameter, second outside diameter, third length of small rod, fourth depth of hollow. So we can measure 4 different measurements through this vernier caliper: inside diameter, outside diameter, length of small rod, depth of hollow. So its working and function. Now we will study about its working and function. So how it work and how it function. So इसका स्ट्रक्चर, सबसे पहले हम इसकी तरफ आते हैं, स्ट्रक्चर की तरफ. स्ट्रक्चर मीन साथ इसके क्या क्या मौजूद है. तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास मेन स्केल है, ये वाला मेन स्केल, जिसको हम डिनोट करते हैं यहाँ पर MS से, मेन स्केल. मेन स्केल पे जो मेजरमेंट्स ग्रेजुएटेड होती हैं वो सेंटीमीटर में भी होती हैं, इंचेस में भी होती हैं और मिलीमीटर में भी हो सकती हैं. सो graduated with the scale in centimeter, inches and millimeter as well. This is the main scale from 0 to 10. and here यहाँ पर भी आपके पास इसका स्केल हो सकता है. वो यहाँ पर लेट सपोज ये सेंटीमीटर में है तो ऊपर आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये इंच में हो जाएगा. अगर ऊपर सेंटीमीटर में है तो नीचे आपके पास मिलीमीटर में ये स्केल होगा, स्केल मौजूद होगा. सेकेंड वन, वर्नियर स्केल, जिसको VS से डिनोट किया जाता है. सो वर्नियर स्केल is not a measuring, is not in the centimeter or millimeter. These are the divisions. ये divisions है आपके पास. Graduated this scale with division equally apart or divided. 0 to 9, which is equal to 10 divisions. टोटल 10 डिविजन्स होती हैं वर्नियर स्केल पे, 0 भी इसमें शामिल होता है. और इसका क्या होता है, इसका काम, जब हम इसको यहाँ पर ओपन कर देते हैं, किसी रॉड का स्मॉल लेंथ फाइंड कर रहे हैं, तो जब ये ओपन हो जाता है, जहां तक आपके पास वर्नियर स्केल स्टॉप हो गया है वहां तक मेन स्केल की आपके पास क्या होगी, ये आपके पास यहां तक ये मेन स्केल रीडिंग होगी. दैट इज कॉल्ड मेन स्केल रीडिंग. ये मेन स्केल रीडिंग है आपके पास. अब यहां तक ये क्योंकि वर्नियर स्केल यहां पे स्टॉप होगा, मेन स्केल रीडिंग कितनी होगी, ये आपके पास होगी 2.4 सेंटीमीटर. 2.4 सेंटीमीटर आपके पास यहाँ पर है. अब वर्नियर स्केल जो कि डिविजन्स हैं उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे,
उसको कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पर देखेंगे कि वर्नियर स्केल का कोई एक लाइन, ये 0 से लेकर 9 तक जो लाइन है, ये पॉइंट्स हैं, इनमें से कोई एक लाइन मेन स्केल की किसी एक लाइन की बिल्कुल आमने सामने होगा। यहाँ पर इत्तेफाकन एक्सीडेंटली हमारे पास क्या है जो हमने रफली ड्रा किया है, लेकिन 1 और 3 यहाँ पर आप देख सकते, जूम करके देख सकते हैं कि ये कोइंसाइड हो रहे हैं। कोइंसाइड मीन कि आमने सामने हो, ठीक। तो ये आपके पास क्या होगी, 1 इज द वर्नियर स्केल डिवीजन आपके पास। अब इस 1 को हम क्या करेंगे, वर्नियर स्केल के लिए हम क्या करते हैं, इसको उसकी लीस्ट काउंट के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं। लीस्ट काउंट हम पढ़ेंगे, आपको समझ आ जाएगी। यहाँ पर हमारे पास वर्नियर स्केल जो रीडिंग है, वर्नियर स्केल इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 0.1 मिलीमीटर और 1 मल्टीप्लाई हम लिखेंगे 0.01 आपके पास सेंटीमीटर। तो आपके पास क्या हो जाएगा, यही वैल्यू आएगी आपके पास, ये वर्नियर स्केल रीडिंग हो जाएगी। क्लियर? सो दैट इज द वर्नियर स्केल रीडिंग एंड दैट इज द मेन स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग कैसे लेते हैं, जहां तक वर्नियर स्केल यानी ओपन होके स्टॉप हो जाए, क्योंकि ये मूवेबल है। ये क्या है आपके पास, यहां पर एक बात नोट करें कि मेन स्केल फिक्स्ड होता है, हॉरिजॉन्टली फिक्स्ड होता है, और वर्नियर स्केल आपके पास क्या है, ये आपके पास मूवेबल है, मूव करता है। यहां से हम इसको कैप्चर करते हैं, उसको मूव करवाते हैं ओवर द मेन स्केल, स्लाइड करवाते हैं ओवर द मेन स्केल। सो दैट इज द टेकिंग ऑफ द रीडिंग फ्रॉम द वर्नियर स्केल एंड द मेन स्केल। अच्छा, अब नेक्स्ट हम आते हैं, जो हमारे पास इसके अंदर मौजूद है, अपर जाज है, लोअर जाज है, उनका फंक्शन क्या होता है। सो लेट्स सी, द थर्ड इन द स्ट्रक्चर इज अपर जाज, जिसको हम J1 भी कहते हैं, J1 भी कहा जाता है इसको। इस अपर जाज का क्या काम होता है वर्नियर कैलिपर में, इस अपर जाज का जो यहाँ पर वर्नियर कैलिपर में काम है कि इनसाइड, यहाँ पर मैंने लिखा भी है J1 कि इनसाइड द डायमीटर, ये यहाँ पर इसको हम रखेंगे, जब क्लोज होगा रख देंगे तो इसको ओपन कर देंगे तो ये यहाँ पर फिक्स हो जाएंगे। जब यहाँ पे फिक्स हो जाते हैं तब यहाँ पर हम मेन स्केल रीडिंग और वर्नियर स्केल रीडिंग लेते हैं। यहाँ पर अपर जाज के थ्रू हम क्या कैलकुलेट करते हैं, इनसाइड द डायमीटर of the measure anything, so that is the upper jaws। यहाँ पर मैंने लिखा भी है, तो आउट इनसाइड डायमीटर कौन कर रहा है, J1 के थ्रू हम करते हैं। क्लियर? फोर्थ वन जो इसके अंदर है वो क्या है, लोअर जाज है, जिसको हम क्या कहते हैं, J2 भी कहते हैं। और यहाँ मैंने लिखा है उसके हवाले से कि स्मॉल लेंथ भी हम फाइंड कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर आप ये चाहते हैं कि आपके पास मेजरिंग परफेक्ट हो, आप रूलर से इसको सही तरह से नहीं कर सकते मेजर, तो आप क्या करते हैं, इसको प्लेस कर देते हैं यहाँ पर। जब यहाँ पर प्लेस कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं, तो मेन स्केल रीडिंग और वर्नियर स्केल रीडिंग लेते हैं, तो ये हम लेंथ भी फाइंड कर सकते हैं और इसके आउटसाइड डायमीटर भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लोअर जाज हमें क्या करके देता है, हमें लेंथ भी फाइंड करता है प्लस आउटसाइड डायमीटर भी फाइंड करके देता है। अब एक रह गया है, कौन सा रह गया है इसके अंदर, देखिए हम इसको पॉइंट आउट कर लें कि ये हमारे पास 1, ये हमारे पास 2, ये हमारे पास 3, ये हमारे पास 4, फिफ्थ कौन सा है, ये नीडल इज द फिफ्थ वन। तो आपके पास क्या है, यहां पर हम आते हैं नीडल। नीडल का क्या काम है, यहां पर जैसे ही हम इनको ओपन कर दे तो नीडल भी बाहर की तरफ ओपन होगा, बाहर की तरफ आएगा। तो नीडल का काम यहाँ पर जो है, इस वर्नियर कैलिपर में अब कोई रूलर या कोई और चीज हम इसकी एक्चुअल डेप्थ तो उसके थ्रू नहीं फाइंड कर सकते, तो एक्चुअल डेप्थ फाइंड करने के लिए हम इस वर्नियर कैलिपर के नीडल का इस्तेमाल करते हैं। इस नीडल को यहाँ पे आप क्या करते हैं, इंडेप्थ करते हैं और उसको ओपन हो रहा होता है, जहां तक वर्नियर के स्केल स्टॉप नीचे जाके, और तो मेन स्केल रीडिंग और वर्नियर स्केल रीडिंग ले लेंगे तो हम इसके
डेप्थ को इजीली एक्यूरेटली मेजर करेंगे। तो ये क्या करके देते हैं नीडल, ये आपको डेप्थ ऑफ द एनी होलो स्फीयर का फाइंड करके देता है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर के इन्वेंट करने वाला ट्रियर वर्नियर बेल्जियम में पैदा हुआ, फ्रांस में ग्रो अप हुआ, और वहां पे मैथमेटिशियन फिजिसिस्ट, और इसके बारे में कहते हैं कि डिफाइन कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे। तो ये तो हमें सामने नजर आ रहा है कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि स्मॉल मेजरमेंट करके देता है। अब सवाल ये है कि स्मॉल मेजरमेंट से क्या मुराद है? रूलर जो है वो क्यों स्मॉल मेजरमेंट करके नहीं देता? उसमें भी तो आपके पास इंचेस में है और सेंटीमीटर में है। तो बिल्कुल वहां पर भी इंचेस में है और सेंटीमीटर में है, लेकिन यहाँ पर इस सेंटीमीटर को हम इस लीस्ट काउंट के थ्रू 1 के थ्रू मिलीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। वहां पे भी कर सकते हैं, लेकिन वो एक्यूरेटली नहीं होता। अब रूलर जो है, रूलर वो स्टार्ट होता है 0.1 यानी 1 सेंटीमीटर से। उसका लीस्ट काउंट जो है वो आपके पास क्या है, 1 सेंटीमीटर है इंचेस के हवाले से। अगर आप सेंटीमीटर में देखते हैं तो जब 10 डिवीजन कंप्लीट होते हैं नीचे सेंटीमीटर में, तो 1 सेंटीमीटर कंप्लीट होता है। इसका मतलब कि रूलर से, फुट से जो हम मेजरमेंट करते हैं उसके लीस्ट काउंट क्या है, 1 मिलीमीटर है। कितना है? दैट इज 1 मिलीमीटर। सो अब यहां पर हम देखते हैं कि इसका लीस्ट यानी स्मॉल मेजरमेंट क्या है, वो यानी उस मिलीमीटर का 10वां हिस्सा। फुट जो है 1 मिलीमीटर करके दे सकता है, और ये क्या कर सकता है, ये उस फुट के 10वें हिस्से क्या एक हिस्सा फाइंड करके दे सकता है, मतलब 0.1 मिलीमीटर। सो ये 10 टाइम लेसर फाइंड करके देता है। स्मॉल वैल्यू 10 टाइम स्मॉल वैल्यू जो है वो रूलर से ज्यादा एक्यूरेटली कैलकुलेट करके दे सकता है। सो इट इज अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट थ्रू व्हिच वी कैन मेजर अप टू 1/10 of millimeter or 0.1 millimeter called vernier caliper. Through this measuring instrument we can measure inside, outside diameter, length of small rod, depth of hollow. तो ये कैसे फाइंड करते हैं? तो ये यहाँ पर स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं। ये मेन स्केल है, मेन स्केल फिक्स्ड होता है, और सेंटीमीटर, मिलीमीटर और इंचेस में भी इसके स्केल हो सकते हैं। और ये मूवेबल जो है नॉब यहाँ पे लगा होता है, जो कि वर्नियर स्केल है। ये यहाँ पे जो नॉब मैंने लेके इसको फिक्स करने के लिए होता है। तो ये डिविजन्स में होते हैं, और इन डिवीजन को हम देखते हैं कि कौन सा डिवीजन मेन स्केल के डिवीजन के साथ कोइंसाइड करता है, तो उसको लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो वर्नियर स्केल रीडिंग हो जाती है। अपर जाज इनसाइड डायमीटर कैलकुलेट करते हैं, मैंने यहाँ पर इसका एग्जांपल दिया, ठीक। तो इसी तरह लोअर जाज जो है आउटसाइड डायमीटर और लेंथ फाइंड करके देता है। नीडल का काम डेप्थ है। तो हम आते हैं किसकी तरफ, लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट जो है हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर, और ब्रीफली डिस्कस करेंगे, क्योंकि अब लीस्ट काउंट है। व्हाट इज मीन बाय द लीस्ट काउंट? 0 एरर होते हैं यहाँ पर। हर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, हर जो मशीन है, ये मशीन है। मशीन का मतलब विच मेक्स द वर्क इजी, तो जो हमें काम आसान करके देता है, तो उसमें फॉल्ट होते हैं, एरर आते हैं। उन फॉल्ट को हम एरर कहते हैं। उस एरर को हम रिमूव कर सकते हैं, उन एरर को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे? यहाँ पर भी एरर आएगा हमारे पास, और मेजरमेंट के हवाले एट द लास्ट हम मेजरमेंट पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें फिगर को याद रखें, इंशाल्लाह हम इसमें नेक्स्ट सेक्शन में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।